हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन शुरू करा था, जहाँ पे हमने टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। टिश्यूज़ दो ग्रुप्स में क्लासिफाई हुई थी, इनटू प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। वी स्टार्टेड विद डीलिंग योर एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा था? एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप्स: epithelial, connective, next muscular and nervous tissue. We were done with epithelial tissue, thereafter we started with connective tissue. When we are dealing with connective tissues were of 5 types: areolar, adipose, reticular, structural supportive, and last one was fluid connective tissue. In fluid connective tissue there was just one tissue, that is blood. Next we classified blood, differentiated blood. Blood were divided into two compositions: lymph and blood corpuscles. In last class we were done until your blood corpuscles. Now we'll start from the blood corpuscles itself. What are blood corpuscles or blood cells? We'll continue from this. Okay, when we are talking about blood corpuscles or blood cells, in our blood there are 3 different types of blood cells or blood corpuscles. Have a look around. What are the 3 types? First one is RBC or erythrocyte. In the diagram you can have a look over here. This specific cell is your RBC, circular shaped cells, RBCs. The second type of cell is white blood cell, leukocyte or lymphocyte. Leukocyte and lymphocyte are alternate names for white blood cells. Have a look around. This purple colored cell over here, actually this is for representative, it has been shown in a bluish purplish tinge, but this is a white blood cell. Next, the other one is platelets or thrombocytes. You can see over here the star shaped irregular shaped cells are your platelets. So these are your 3 different types of cells present in our blood. Next we'll be dealing with all these 3 cells in a detailed manner. The first cell is RBC, red blood cell. It is also known as erythrocyte. Over here erythro means red while cytes means cells. So RBC or erythrocyte, this means red colored cells, to be specific red blood cell. Okay, they are spherical in shape and biconcave. Have a look around. We can observe the shape of the RBCs. It is spherical and it is biconcave. That means it is a bit hollow from both the sides. So it is biconcave. Next, their life cycle is 120 days. That means since the time they are formed until they are destroyed, it takes around 120 days. Now there is this unique fact about RBCs. RBC lacks nucleus. In cell topic we have already dealt that every cell has nucleus, but when you are talking about RBCs, newly formed RBC will have nucleus, but after it matures the nucleus will disappear. So this is uniqueness about RBC. Mature RBCs will lack nucleus. Next, they contain a red pigment known as hemoglobin. Now RBC red blood cells have this red color because of hemoglobin, and this RBC and hemoglobin are responsible for the red color of our blood. Next, the main function of RBC is to transfer CO2 and oxygen. Now we remember this, RBC or blood is responsible for transporting oxygen and carbon dioxide in our body. To be specific, this oxygen and carbon dioxide are carried with help of hemoglobin itself. Now they are produced at bone marrow. Now you have to remember this, RBC are always produced at bone marrow. If they are getting produced somewhere, they have to be destroyed. RBC gets destroyed at liver and spleen. Now these are 2 sites where your RBC get destroyed. By the way, spleen is considered as graveyard of RBC. So this specific slide is a important 3 and 5 marker question, plus the facts mentioned over here such as shape, how many days it can live, which cell lacks RBC,
which one is the red colored pigment, next where RBC is produced, where it gets destroyed, what organ is known as graveyard of RBC. These can be the pre-questions from this specific slide. Next cell, white blood cell, also known as leukocyte or lymphocyte. Leuco over here means colorless or white, cyte over here means cell. So leukocyte is white cell or white blood cell. Lymphocyte, here lymphocyte over here means this is the cell that is present in lymph. Already we studied about lymph. I think you might have known about it. From blood, if you separate RBC, the leftover part of blood is known as your lymph. सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में अगर हम बात करें, ब्लड में से अगर आरबीसी को हटा देते हैं, जो बचा हुआ जो ब्लड है, आरबीसी से अलग कर देने के बाद जो ब्लड बच जाता है उसी को हम कहते हैं लिम्फ. आरबीसी हट गया लेकिन इस लिम्फ में अभी भी डब्ल्यूबीसी है ना, तो इसी वजह से डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट. देखते हैं लिम्फोसाइट या फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में. दीज आर कलरलेस, डायग्राम में भी आपको दिख जाएगा. दीज आर कलरलेस और व्हाइट इन कलर. नेक्स्ट, दीज आर लार्ज इन साइज, अमीबा लाइक. यहाँ पे आपको सर्कुलर दिख रहा है, बट अगर जनरली देखा जाए डब्ल्यूबीसी अपना शेप चेंज कर सकता है, कभी सर्कुलर हो सकता है, कभी कोई भी शेप में आ सकता है, वो अमीबा के हिसाब की तरह अपना शेप चेंज कर सकता है. एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड बॉडी इम्यून डिफेंस. If any pathogen or harmful organism enters our body, WBC is responsible for killing them. So it is responsible for providing us with body immune defense. Next, most of them are found in lymphatic nodes. ये हमारे blood vessel के आसपास होती है, जहाँ पे WBC को ये स्टोर करने में हेल्प करती है. और इन वेसल्स को या फिर इन प्लेसेस को हम क्या कहते हैं, lymphatic node. तो WBC कहाँ पाया जाएगा, lymphatic nodes में पाया जाता है. Next, it performs फैगोसाइटोसिस टू किल डिजीज कॉजिंग एजेंट. जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, इनको फैगोसाइटोसिस के सहारे ये मार देता है, किल करता है. फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, फैगो का मतलब है एनगल्फ करना, निगल लेना, साइटोसिस का मतलब है किल करना. तो फैगोसाइटोसिस में होता क्या है, ये ऑर्गेनिज्म को पहले निगलता है और उसके बाद उसको मार देता है. नेक्स्ट, इट्स लाइफ ड्यूरेशन इज 8 to 10 days. तो एक बार WBC जो बन जाती है 8 से 10 दिन तक ही ये सरवाइव करती है. इसको भी हम प्री और मेंस के हिसाब से मार्क करेंगे. नेक्स्ट, लास्ट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. यहाँ पे थ्रोम्बो का मतलब है क्लॉटिंग, साइट का मतलब है सेल. सो थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या है, क्लॉटिंग सेल, सेल जो ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है. देखते हैं, these are small fragile fragments of a giant cell. आपको इस डायग्राम में यहाँ पे अब दिख जाएगा, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, these structures are your platelets. प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, जब ये प्रोड्यूस होती है तो एक बड़े से सेल के तौर पर प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो बड़ा सा सेल जब मैच्योर हो जाता है तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस में बिखर जाता है, जिनका शेप इरेगुलर होता है. और ये इरेगुलर शेप्स स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट. इस वजह से यहाँ पे टर्म यूज करा गया, फ्रेजाइल, नाजुक फ्रैगमेंट्स ऑफ अ जाइंट सेल, क्योंकि बड़े से सेल के छोटे छोटे पीसेज हैं, टुकड़े हैं. इट्स फंक्शन इज टू हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस बाय ब्लड क्लॉटिंग. प्लेटलेट का काम क्या है, ये हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है ताकि ब्लड लॉस को हम प्रिवेंट कर सकें. इसकी लाइफ ड्यूरेशन क्या रहेगी, 7 to 9 days. So these are your 3 different types of blood cells, RBC, WBC and platelets. Next, functions of blood. Blood and functions of blood, ये आपके लिए प्री और 5 मार्क के तौर पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लड एंड इट्स फंक्शंस, 5 मार्क का. और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज जो है, which of the following statements are true for blood, ऐसे करके ये प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है. देख लेते हैं functions of blood. First function is it helps in transport of nutrients, hormones and excretory substances. जैसे यूरिया वगैरह कोई हमारे ब्लड में कैरी करके किडनी के पास लिया जाता है. खाना खाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाइजेस्ट हम करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. हॉर्मोन्स वगैरह को भी कैरी करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज. लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन को ये टिश्यूज तक लेके जाता है. प्लस इट ब्रिंग्स बैक CO2.
पूरे बॉडी टिश्यू सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लंग के पास लेके आता है फॉर एक्सहेलेशन। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, क्योंकि ब्लड के अंदर WBC है तो ये डिजीज को प्रिवेंट करता है। टू प्रिवेंट ब्लड लॉस बाय ब्लड क्लॉटिंग एंड फर्दर हेल्पिंग वुंड हीलिंग, क्योंकि प्लेटलेट्स मौजूद हैं तो ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है ताकि घाव जो है तेजी से भर सके और ठीक हो सके। नेक्स्ट, इट हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। याद होगा हम ह्यूमन क्या है, वार्म ब्लडेड, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली ब्लड क्या करती है, इस चीज में हेल्प करे। प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करे, क्योंकि ब्लड के अंदर हमने पढ़ा था कंपोजिशन में वो वाटर और सॉल्ट होता है। अगर किसी बॉडी पार्ट में वाटर की जरूरत पड़ती है, सॉल्ट की जरूरत पड़ती है तो ब्लड से सप्लाई करी जाती है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, ब्लड हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इस मेजर टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स आपके लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे प्लस मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने करा था, कार्ल लैंडस्टेनर ने, तो हम इन्हें मार्क करेंगे। जो ब्लड ग्रुपिंग है इट इज बेस्ड ऑन सरफेस प्रोटीन और सरफेस एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये हमारे लिए प्री क्वेश्चन बन गया। ब्लड ग्रुप किन सेल की वजह से डिटरमाइन होती है, आरबीसी की वजह से। आरबीसी में भी कैसे डिटरमाइन होती है, आरबीसी के जो सरफेस है, सेल के ऊपर जो प्रोटीन मौजूद है या फिर जो एंटीजन मौजूद है, यहाँ पे इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं, सरफेस प्रोटीन भी कह सकते हैं, सरफेस एंटीजन भी कहते हैं। इनकी वजह से अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं। फॉर दिस डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। इस चीज को हम याद रखेंगे। कार्ल लैंडस्टेनर को नोबेल प्राइज किस वजह से मिला था, फॉर डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप। बाय द वे किसमें इन्होंने डिस्कवर करा था ब्लड ग्रुप, रिसस मंकी में। ओके, ब्लड ग्रुप के टाइप्स देख लेते हैं। लैंडस्टेनर डिफरेंशिएटेड ब्लड ग्रुप्स इनटू 2 सिस्टम्स, एबीओ सिस्टम एंड आरएच और रिसस सिस्टम। 2 टाइप के ब्लड ग्रुप्स को इन्होंने डिफरेंशिएट करा है, एबीओ ग्रुप और आरएच सिस्टम। ठीक, ब्लड ग्रुपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे देख लेते हैं। द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे कि ब्लड ग्रुप मिसमैच अगर हो जाता है तो इसकी वजह से डेथ हो सकती है, तो कौन सा ब्लड किसको प्रोवाइड करी जाएगी, इस चीज को या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को आइडेंटिफाई करने में ब्लड ग्रुपिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। If another blood type is introduced into our body, our immune system recognizes it as foreign and attacks it, resulting in transfusion reaction. अगर अलग अलग ब्लड ग्रुप हो जाता है तो इश्यू ये आती है कि हमारे ब्लड जब हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ब्लड तो आ गया, लेकिन इसमें एक दिक्कत रहती है, हमारी बॉडी के अंदर जो WBCs हैं वो क्या करते हैं, इस दूसरे ब्लड ग्रुप को क्या मान लेती हैं कि एनिमी है या फिर एंटीजन है, और उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर मिसमैच हो जाता है तो फिर हमारी डेथ भी हो सकती है। इसी वजह से हमेशा हमें पता होना चाहिए हमारी क्या ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप्स हैं एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। एबीओ सिस्टम, ओके, द बेसिस ऑफ एबीओ ग्रुपिंग इज ऑन 2 एंटीजेंस। ये जो एबीओ सिस्टम की हम बात करते हैं इसका बेस क्या है, 2 एंटीजेंस है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ये एंटीजन ए एंटीजन बी कुछ और नहीं है, ये सरफेस प्रोटीन है, आरबीसी के ऊपर पाई जाने वाली सरफेस प्रोटीन। यहाँ पे अगर आप डायग्राम पे ध्यान दें, नीचे ध्यान दीजिएगा सर, ये देख लेते हैं, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है और ये ब्लड ग्रुप है ओ। 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, ध्यान दीजिएगा। इस ब्लड ग्रुप ए के ऊपर देखिएगा ये जो ब्लू कलर के जो चीजें आपको यहां दिख रही हैं यही है सरफेस प्रोटीन। सिमिलरली बी के ऊपर आपको दिख जाएगा ट्रायंगल शेप के पर्पल कलर के जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है सरफेस एंटीजन बी। तो ये 2 तरह के एंटीजन की वजह से ही ब्लड ग्रुप डिटरमाइन हो पा रही है। तो देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा गया, उसके बाद हम डिटेलेशन में जाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। The ABO grouping system is classified into 4 types based on presence और absence। कौन कौन सा एंटीजन है नहीं है, इसी के बेसिस पे हम क्या कह रहे हैं, ब्लड ग्रुप को डिफरेंशिएट करते हैं। कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स मौजूद हैं, ए बी एंड ओ, 4 टाइप के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं। साथ ही साथ एंटीजन्स क्या है,
ये सरफेस प्रोटीन है जो कि आरबीसी के ऊपर मौजूद है। एंटीजन वगैरह जाने से पहले एक बेसिक जानकारी थोड़ा सा ले लेंगे। एंटीजन, यहाँ पे एंटीजन का मतलब है, एंटी मतलब अगेंस्ट, जेन यहाँ पे जो कहा जा रहा है, जेन का मतलब है अस, जो चीज हमारे खिलाफ काम कर सकती है उसे हम कहते हैं एंटीजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आरबीसी के ऊपर एंटीजन कहाँ से आ गया। एक्चुअली एंटीजन एंटीजन नहीं होता, ये एक प्रोटीन है। हर एक आरबीसी के ऊपर अलग अलग टाइप की प्रोटीन है। जैसे ये ब्लड ग्रुप ए के ऊपर कौन सी प्रोटीन मौजूद है, ए वाली प्रोटीन मौजूद है। बी के ऊपर बी वाली प्रोटीन मौजूद है। ए बी के ऊपर ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन मौजूद है। और ओ के ऊपर कोई एंटीजन है नहीं या फिर कोई प्रोटीन मौजूद नहीं है। अब होता ये है, ए के ऊपर अगर ए वाला प्रोटीन मौजूद है, तो अगर ये ए वाला ब्लड अगर हम बी को चढ़ा देंगे, बी के पास तो ये प्रोटीन होगी नहीं, तो बी वाला जो ब्लड है क्या मानेगा कि ए वाला जो ब्लड मेरे अंदर आया है वो मेरे खिलाफ काम करने आया है, मतलब वो एंटीजन होगा। तो इवन दो ए एक सरफेस एंड प्रोटीन है, बी के लिए वो क्या बन जाता है, एंटीजन बन जाता है। सिमिलरली बी वाला ब्लड सरफेस प्रोटीन उसके ऊपर बी है, लेकिन जब वो ए के अंदर सप्लाई करी जाएगी तो ए क्या बन जाए, ए के लिए वो क्या बन जाएगा, एंटीजन। तो इसी वजह से हम यहाँ पे सरफेस प्रोटीन को ही एंटीजन कह रहे हैं। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, 4 ब्लड ग्रुप्स, और चारों ब्लड ग्रुप्स में किस ब्लड ग्रुप पे कौन कौन से एंटीजन या फिर सरफेस प्रोटीन है और ब्लड ग्रुप क्या है देख लेते हैं। पहले डील करेंगे ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए की अगर हम बात करें, इसके ऊपर कौन सी सरफेस प्रोटीन सरफेस एंटीजन है, इसके ऊपर एंटीजन ए या फिर सरफेस प्रोटीन ए है। तो इस वजह इसका नाम क्या पड़ गया, ए ब्लड ग्रुप। साथ ही साथ क्योंकि ये ए ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ काम करती है। तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी रहेगी ब्लड के अंदर, एंटी बी एंटीबॉडी रहेगी। इस चीज को हम याद रखेंगे। फिर आते हैं ब्लड ग्रुप बी की तरफ। ब्लड ग्रुप बी मतलब आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन या फिर प्रोटीन मौजूद है, बी वाला प्रोटीन मौजूद है। ये किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, ए के खिलाफ। तो एंटीबॉडी का नाम क्या है, एंटी ए एंटीबॉडीज। अब आते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की तरफ। ए बी के ऊपर क्या रहेगा, इसके पास ए वाली भी प्रोटीन है, बी वाली भी प्रोटीन। क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोटीन मौजूद हैं, ये किसी के खिलाफ पे एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। सो इट हैज नाइदर ए नॉर बी एंटीबॉडी। अब आते हैं ब्लड ग्रुप ओ। अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें, इसके ऊपर कोई प्रोटीन कोई एंटीजन है ही नहीं, 0A 0B मतलब कोई भी एंटीजन नहीं, 0 एंटीजन है, वही 0 से इसका नाम आ गया O ग्रुप। अब क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो ये क्या करेगा, A के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा, B के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा। तो इस हिसाब से हमारे टोटल ब्लड ग्रुप कितने हो गए, 4, A B और O। वैसे आपको तो पता ही होगा AB क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, वो सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। ए से रिसीव कर सकता है, बी से रिसीव कर सकता है, ओ से रिसीव कर सकता है, ए बी से भी रिसीव कर सकता है। इसी वजह से ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर, ये बाकी सारे ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है। ए को डोनेट कर सकता है, बी को कर सकता है, ए बी को कर सकता है और ओ को कर सकता है। इसी वजह से हम ब्लड ग्रुप ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट और ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है ये RH सिस्टम है या फिर रिसर्च सिस्टम। जैसे ABO सिस्टम किस बेसिस पे बना हुआ था, सरफेस प्रोटीन सरफेस एंटीजन A और B। सिमिलरली उन दोनों एंटीजेंस के अलावा भी एक और तरह का सरफेस प्रोटीन या फिर सरफेस एंटीजन मौजूद है। देखते हैं। द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन। जैसे वहां पे A और B एंटीजन प्रोटीन था, यहाँ पे वैसे ही क्या रहेगा, RH एंटीजन। RH एंटीजन को एक और नाम से भी जाना जाता है, RH फैक्टर। अगेन ये RH एंटीजन RH फैक्टर क्या है, एक सरफेस प्रोटीन AB से थोड़ा हटके, वो प्रोटीन A था प्रोटीन B था, ये सिमिलरली जो प्रोटीन है इसका नाम हमने रखा है RH फैक्टर। ठीक। The designation RH is derived from use of blood of rhesus monkey। क्योंकि rhesus monkey के ऊपर रिसर्च करा गया था ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए, तो एक रेस्पेक्ट के तौर पे कमेमोरेट करने के लिए हमने यहाँ पे
जो प्रोटीन है उसका नाम रखा है RH फैक्टर, रिसस फैक्टर, और या फिर रिसस एंटीजन। ठीक, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है, इफ RH फैक्टर इज प्रेजेंट, द ब्लड ग्रुप हैज RH पॉजिटिव ब्लड। अगर RH फैक्टर नहीं है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, रिसस नेगेटिव या फिर RH नेगेटिव। जैसे आपने सुना होगा A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है किस चीज पे बेस्ड है, RH फैक्टर है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर नेगेटिव, अगर मौजूद है पॉजिटिव। अगेन जैसे ABO के साथ था, अगर ब्लड ग्रुप मिसमैच होती है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन फेल हो सकता है। RH पॉजिटिव नेगेटिव के साथ भी ऐसा ही है, अगर RH मिसमैच हो गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन फेल हो सकता है, इसकी वजह से आगे चल के दिक्कत आ सकती है, डेथ भी हो सकता है। अगेन मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा, प्लीज नो योर ब्लड ग्रुप। आपका क्या ब्लड ग्रुप है आपको पता होना चाहिए, खाली खुद के लिए नहीं, किसी दूसरे की मदद करने के लिए भी हमें हमारे ब्लड ग्रुप जानने की जरूरत है। हो सकता है हमारी ब्लड की जरूरत किसी और को पड़ जाए। नेक्स्ट, ये RH मिसमैच की वजह से मैंने अभी कहा था कि डेथ वगैरह भी हो सकती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले लेंगे। देयर इज दिस कंडीशन नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेम है, बट इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, अगर RH मिसमैच हो जाता है तो इसकी वजह से जो बेबी है, कह सकते हो मतलब जो बेबी मदर की बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है उसकी मौत भी हो सकती है, या फिर एबॉर्शन हो सकता है। और इस टाइप के एबॉर्शन जहां पे RH मिसमैच हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। देखते हैं, इट इज अ कंडीशन इन विच RBC ऑफ अ फीटस आर डिस्ट्रॉयड इन अ मैटरनल इम्यून रिएक्शन। मदर की बॉडी में इम्यून रिएक्शन उनकी WBC की वजह से होता क्या है, बच्चे की जो RBC है वो क्या हो जाती है, मर जाती हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे की डेथ हो सकती है। रीजन क्या देख लेते हैं, condition in which the RBC of fetus are destroyed in a maternal immune resulting from a blood group incompatibility, मतलब mismatch हो रहा है between the fetus and its mother. Mismatching of RH factor may lead to an adverse situation leading to abortion in second or subsequent pregnancy. First pregnancy में कोई इशू नहीं आती है, इशू आती है कब, सेकेंड या फिर उसके बाद वाली प्रेगनेंसीज में ये इशू आ सकती है। कंडीशन का नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। सिचुएशन को देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेल और फीमेल देख लीजिएगा। मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव, और फीमेल का अगर नेगेटिव है। इस टाइप के मिसमैच में ही सिचुएशन आएगा जहाँ पे मेल का क्या है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और फीमेल का अगर नेगेटिव है तो ही ये कंडीशन होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एनीवेज, male is positive, female is negative blood group. Okay, so they are going to have a child. यहाँ पे देख लीजिएगा, the mother is going to have a child. mother का blood group क्या है, नेगेटिव है। लेकिन मान लेते हैं अगर ये पहली प्रेगनेंसी है और इसमें जो मदर की बॉडी के अंदर जो बेबी ग्रो कर रहा है उस बेबी का अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यहाँ पे हुआ क्या, ब्लड ग्रुप मिसमैच हो गया, मदर का नेगेटिव है एंड चाइल्ड का क्या है, पॉजिटिव। आपको पता ही होगा मदर्स एंड चाइल्ड ब्लड कम इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर कहाँ पे, प्लेसेंटा में। ठीक, मदर और चाइल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब कनेक्टेड होने की वजह से साथ ही साथ डिलीवरी के दौरान होता क्या है, चाइल्ड का जो पॉजिटिव ब्लड है, चाइल्ड बर्थ के दौरान पॉजिटिव वाला ब्लड जो है मदर के नेगेटिव ब्लड के साथ क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट में आ जाता है। चलो प्रेगनेंसी तो कंप्लीट हो गया, बेबी तो बर्थ हो गया है, लेकिन मदर के ब्लड में क्या हो गया, थोड़ा सा पॉजिटिव वाला ब्लड मिक्स हो गया होगा। इसी वजह से मदर की जो WBCs हैं उन्हें दिख जाता है कि ये एक अलग टाइप का एक ब्लड हमारी बॉडी में एंटर हो गया, तो उसके खिलाफ मदर की बॉडी में क्या करी जाती है, उस पॉजिटिव RH के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई जाती है। क्योंकि आप बोल रहे हो RH पॉजिटिव नेगेटिव में जो डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या है, RH प्रोटीन है नहीं है, RH एंटीजन है नहीं है। एंटीजन मतलब जो हमारे खिलाफ काम कर सकता है, उस एंटीजन के खिलाफ क्या प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडी। तो मदर की बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो गया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने के बाद मदर की बॉडी में ही स्टोर रहती हैं। चलिए, तो अभी मदर की पहली प्रेगनेंसी हो चुकी है, लेकिन मदर की बॉडी में क्या मौजूद है, एंटीबॉडी मौजूद है। अगर फिर दोबारा से अगर प्रेगनेंसी होती है, सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, और सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर मान लेते हैं बेबी का वापस से पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप हुआ, तो फिर होगा क्या,
मदर के बॉडी में पहले से क्या मौजूद थी, अब एंटीबॉडी मौजूद थी जो कि यहाँ पे बनी हुई थी। वही एंटीबॉडीज अब कहाँ मौजूद है, मदर के बॉडी में मौजूद है। अब जैसे ही वो प्रेगनेंसी वापस से प्रेग्नेंट होती हैं और अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो होगा क्या, अगेन वही मदर एंड चाइल्ड का ब्लड आपस में कांटेक्ट में आएंगे। जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं मदर के ब्लड के अंदर से एंटीबॉडी कहाँ एंटर हो जाएंगी, चाइल्ड के बॉडी के अंदर। चाइल्ड के बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद ये सारी की सारी एंटीबॉडी क्या करेंगी, जो RH कि जो पॉजिटिव वाला जो फैक्टर था, जो एंटीजन है उसको मारना शुरू कर। और ये एंटीजन कहाँ मौजूद थी, आरबीसी के ऊपर। तो चाइल्ड की सारी आरबीसी को ये क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर चाइल्ड की सारी आरबीसीज मर जाएंगी तो फिर बेबी सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आरबीसी का काम क्या था, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अगर बेबी को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो बेबी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे डेथ हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। डेफिनेशन हम याद रखना है, तो फिर हम यहाँ पे जो थर्ड पैराग्राफ पे जो लाइन है, सॉरी थर्ड लाइन जो है यहाँ पे उसी को याद रखेंगे। व्हाट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, मिसमैचिंग ऑफ RH फैक्टर में लीड टू एन एडवर्स कंडीशन लीडिंग टू अबॉर्शन इन सेकेंड और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। इसी को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करेंगे। कल हम लोग बाकी के जो 2 एनिमल टिश्यूज हैं उसे खत्म करेंगे, फिर टाइम मिला तो फिर हम प्लांट टिश्यू की तरफ बढ़ जाएंगे। हैव अ गुड डे।